Good morning, children. In previous class, I introduced you about reproduction. Now today, I am going to start next topic, and that is reproduction by laying eggs. Topic is reproduction by laying eggs. Birds, fishes, insects, snakes, frogs, snails, turtles and lizards lay eggs. The young one hatch from the eggs. Now some animals such as birds, fishes, insects, snakes, frogs, etc. they lay egg. Their young ones hatch from the eggs. कुछ जानवर जैसे चिड़िया हैं, मछलियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, स्नेक्स हैं मतलब सांप हैं, मेंढक हैं और घोंगे हैं, कछुए हैं, छिपकलियाँ हैं, ये सब अंडे देती हैं. ये सब रिप्रोडक्शन में क्या इनका क्या प्रोसेस होता है, ये अंडे देती हैं. इनके यंग वंस उसी अंडे में से हैच होते हैं, मतलब ये पहले अंडे देती हैं, फिर उसी अंडे से छोटे इनके बच्चे निकलते हैं. बर्ड्स के चूजे, जिन्हें चूजे बोलते हैं, वो निकलते हैं. ओके. Now next topic is structure of an egg. Structure of an egg. Birds lay eggs in their nests. The eggs of all birds have a similar internal structure. An egg is covered by a protective covering called egg shell. It protects the embryo which is inside. The egg is filled with a jelly-like substance called albumen. It is rich in protein. It protects the growing embryo. Yolk is the yellow part of the egg. It is rich in vitamins, fats and minerals. It provides nourishment to the baby growing inside the egg. Birds lay egg in their nests. Now all the eggs of the birds have the similar structure, whether it is of hen, whether it is of pigeon, all the birds' eggs have similar structure. Now I am going to explain you the structure of egg. Now this is egg, okay? Now this is the structure of an egg. It is covered by a protective covering called egg shell. Now this the outer covering, this is called the egg shell. This is outer shell and this one is inner shell. Okay. This outer shell protects the embryo which is inside the egg. Now, the white part, now this part is jelly-like substance. This part is covered by jelly-like substance, white substance, and it is called albumen. albumen. This white part is called albumen. This part is rich in protein. Okay. This albumen protects the growing embryo which is inside the egg. Now this part is yellow. This is yellow part. Yellow part, and this part is called yolk. Okay. This yellow part is called yolk. This part is rich in vitamins, minerals and fats. This part provide nourishment to the growing baby inside the egg. Okay? ये देखिए egg का structure है. Egg थोड़ा सा आगे से तिकोना होता है और पीछे से round होता है. ठीक है? हाँ, this part is called air sac. Okay? नाउ ये एग का स्ट्रक्चर है. ओके.
एग का बाहर की जो कोटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एग शेल, यह एग शेल अंदर के पार्ट की रक्षा करता है, मतलब एम्ब्रियो की रक्षा करता है। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? एम्ब्रियो वो होता है जिसमें से बच्चा निकलता है। एम्ब्रियो बाद में बच्चे का पैदा होने से पहले का जो फॉर्म है, बच्चा निकलता है जो उससे जो पहले का जो फॉर्म है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो ये एग शेल एम्ब्रियो की रक्षा करता है। ओके एग जो ये हो गया आउटर शेल, ये बाहर के पार्ट को आउटर शेल बोलते हैं, इधर अंदर वाले को इनर शेल बोलते हैं। ओके फिर इसके अंदर ये व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमेन। ओके यह पार्ट प्रोटीन में रिच होता है, मतलब ये पार्ट प्रोटीन में बहुत रिच होता है। इसको हम कई लोग प्रोटीन की जरूरत पूरा करने के लिए ये एग का एल्ब्यूमेन पार्ट ही खाते हैं। ओके यह एल्ब्यूमेन अंदर में बढ़ते हुए एम्ब्रियो की रक्षा करता है, मतलब यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे एम्ब्रियो से बच्चा बढ़ रहा है तो ये जो पार्ट है ये एम्ब्रियो की रक्षा करता है। एल्ब्यूमेन जो है वो एम्ब्रियो की रक्षा करता है। ठीक है ना, ये येलो पार्ट होता है छोटा सा गोल सा जिसे हम बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं? योक। ये पार्ट विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स इन सब में रिच होता है, मतलब येलो पार्ट अगर आप खाओगे तो आपकी विटामिन, फैट्स और मिनरल्स की वो पूरी हो जाएगी। और ये क्यों रिच होता है? ये पार्ट जो होता है बढ़ते हुए एम्ब्रियो, यहाँ पे एम्ब्रियो बच्चा बढ़ रहा है, एम्ब्रियो से फिर धीरे धीरे छोटे छोटे चूजे बढ़ रहे हैं, तो ये सारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो होता है एम्ब्रियो को क्या करता है? नोरिशमेंट, मतलब उसको भोजन पहुंचाता है। ठीक है, योग का जो योग में जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो सारे छोटे एम्ब्रियो को बच्चा बनने में, मतलब उसके बड़े होने में मदद करते हैं। इसमें क्या क्या न्यूट्रिशंस है? विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स होते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एग हो गया। ये आपको अपनी कॉपी में लेफ्ट साइड में बनाना है, अभी नहीं, जब मैं आपको रिटर्न वर्क दूंगी तब आपको ये भाग बनाना है अपनी कॉपी के लेफ्ट साइड में। आप चाहो तो आज भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। ओके लेकिन नीट एंड क्लीन अच्छा बनाना। ओके नाउ ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। अब दूसरा पार्ट है बर्ड्स। दूसरा टॉपिक क्या है? बर्ड्स। Birds build nests when they want to lay eggs. After the nest is built, the female birds lay eggs in it. Not only this, it keeps the egg warm by sitting on them. This is called incubation. When the chicks come out of the eggs by breaking the shell, it is called hatching. Baby chicks come out of a hen's egg 21 days after the hen lays them. Birds build nest when they want to lay eggs. When the birds want to lay egg, they build nest. After building the nest, they give egg in their nest. Then these birds sits on these eggs by keeping them warm. By keeping these eggs warm. This is called, what is it called? Incubation. Now, when the chicks comes out of the egg by breaking these eggshell, then this is called hatching. Baby chicks of the hen comes out after 21 days. After 21 days of its laying egg. Okay? बर्ड को जब, चिड़िया को जब अंडे देने होते हैं तब वो घोंसला बनाती हैं। घोंसला बन जाने के बाद वो उसमें अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद में वो उसमें बैठती हैं, काफ़ी दिनों तक अंडे में आके चिड़िया बैठती हैं ताकि उसको उसके शरीर की गर्मी मिल सके। इनको अंडों को, अंडों में बैठती हैं ताकि उनके शरीर की गर्मी उसे मिल सके। इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। जिसे बोलते हैं सेना, अंडे सेना, हिंदी में बोलते हैं अंडे सेना। ठीक है, और जब इन अंडों, जब ये बड़े बच्चे उसमें बन जाते हैं तो एग शेल फटता है और उसमें से छोटे बच्चे निकल आते हैं। इसको हम बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। हैन 21 डेज के बाद, अंडे देने के 21 डेज के बाद हैन के एग्स से चिक्स निकल आते हैं। ओके कितने दिन बाद? 21 डेज के बाद। नाउ आई एम गोइंग टू रीड फैक्ट। द अर्लीस्ट नोन बर्ड लिव्ड ऑन अर्थ अबाउट 150 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर्स। सबसे पहले जो चिड़िया थी इस धरती पे वो डायनासोर्स के टाइम पे थी। वो कितने समय पहले थी? 151 मिलियन ईयर्स एगो थी।
डायनासोर्स के टाइम में सबसे पहली चिड़िया यहाँ पे आई थी। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चिक। देखिए कैसे पहले अंडा यहाँ पे हुआ, फिर अंडे में, यहाँ पे अंडे में ही बच्चे ने वो किया, फिर क्या हुआ, अंडा जो है टूट गया और फिर यहाँ से बच्चे निकल आए। देखा आपने इस तरह से, और फिर ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और फिर यहाँ पे ये मुर्गी, बड़ा मुर्गा बन गया। ठीक है, नाउ this much for today's class. Now in next class I will discuss insects. I will discuss the topic insects. Okay, now you have to read it and you can draw the egg of the structure of an egg in your science copy on the left side of the copy. Okay, now till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.